ਯੈਸ ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਐਰੀ। ਦੇਖੋ 13 ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਐਂਡ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਫ ਵਾਈ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈ ਲਿਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਕੋਸ ਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਵਾਈ, ਆ ਵੀ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖੀ, ਐਫ ਆਫ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਕੋਸ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੋਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਕੋਸ ਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਰੋ ਵਿਦ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਰੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕੋਸ ਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜ਼ੀਰੋ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਸ ਐਕਸ ਕੋਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ, ਪਲੱਸ ਜ਼ੀਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜ਼ੀਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਯਾਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਕੋਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ। ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਜਾਂ ਕੋਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕੋਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਈਨ ਏ ਕੋਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਏ ਸਾਈਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਈਨ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਹਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਈਨ ਏ ਕੋਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਏ ਸਾਈਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਕੋਸ ਏ ਕੋਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਏ ਸਾਈਨ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ ਐਕਸ ਕੋਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਾਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ ਐਕਸ ਕੋਸ ਵਾਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਸਾਈਨ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੋਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 0 0 1 ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, एक्स की जगह तो एक्स प्लस वाई आ गया मेरे को। देखो कॉज है एक्स की जगह तो की आ रहा है एक्स प्लस वाई, साइन है साइन की जगह तो एक्स प्लस वाई भी एक्स प्लस वाई। सो दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ
ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ x + y ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाँ जी देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन की तुसी क्वेरी दी सी एंड इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट भी है तो थोड़ा जिहा समझण वाला भी है। सो ध्यान नाल देखो अगला क्वेश्चन। So if A is equals to this matrix given है and I is the identity matrix of order 2 given है कि I जी identity matrix of order 2 है, शो करके दिखाना कि यह वाली चीज़ यदि इक्वल है। ठीक है, शो करने का मतलब है कि सानू राइट हैंड साइड जी है लैफ्ट हैंड साइड पे प्रूफ करके दिखानी है बेसिकली। ठीक है ना, सो देखो ध्यान नाल सारे जने समझ लो। लैफ्ट हैंड साइड की अगर मैं गल करा, लैफ्ट हैंड साइड की है दिस वन। ठीक है, I + A, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी, A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन सी, इनू ये ऐड किया यानी कि 1 + 0 1 0 एंड -tan α/2 उस तरीके से लिखता है। 0 + tan α/2 होता ही 1 + 0 इज़ 1। सो यह की आ गई साड़ी लैफ्ट हैंड साइड। हुण राइट हैंड साइड की गल कर रही। ठीक है, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट सानू सॉल्व करना पएगा, मतलब कि कुछ भी करके साड़ियाँ दो चीज़ां जिहड़ियां लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड जिहड़ी है वो इक्वल आनी चाहिए। राइट साइड देखो की है I - A, I - A की वैल्यू लिखी, ये नाल आ चीज़ मल्टीप्लाइड है, इनू पहले सॉल्व कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो I -0 करोगे 1 - 0 करोगे सॉरी 1 0 माइनस एंड माइनस, सो पॉजिटिव tan α/2 0 -tan α/2 -tan α/2 1 - 0 इज़ 1 विद नाल एवली जी मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड हैगी। यानी कि देखो ना स्टूडेंट्स, आ राइट हैंड साइड मेरे को दो मैट्रिक्स आ गया, आप दोनों की मल्टीप्लाई करांगे आप इन्हों। ठीक है, बट इतने ना एक चीज़ छोटा जिहा पॉइंट है याद रखना है आप, इन्होंने दोनों देखो मल्टीप्लाई करके मेरे को कितने इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड जी है इक्वल आनी चाहिए मेरे को। ठीक है जी, इन्होंने दोनों स्टूडेंट्स मैं मल्टीप्लाई करन लगी हाँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कुछ करन दा ना एक मैथड है, ट्रिक है, याद रखना इस चीज़ को। अदरवाइज आ क्वेश्चन ना बड़ा लेंथी हो जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा जा सिंपलीफाई करने के लिए मैं कुछ चीज़ा तुहानूं दसांगी, इनू इदां ही करना। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल बेटा जी cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, तुसीं +1 दे विच बच्चे cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा के फॉर्मूलेस किए हुए हैं। ठीक है, मैं उन्होंने फॉर्मूलेस को दोबारा इत्थे मैंशन किया, तो ध्यान नाल देख लो। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होंदा है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होंदा है। ठीक है, तो अगर इत्थे मैं cos थीटा करना हो यानी कि 2 थीटा की जगह पर थीटा अगर मैं लिखना हो, ठीक है, यानी कि 2 थीटा का मतलब थीटा करने का मतलब है कि वह मैं की किया एंगल हाफ कर दिता। ठीक है, तो इत्थे अगर एंगल हाफ होया तो इत्थे भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर अगर थीटा तो इत्थे क्या हो जाएगा θ/2, इत्थे भी कितना आ जाएगा θ/2, इत्थे भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होंदा 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह ऑलरेडी तुसीं स्टूडेंट्स +1 दे विच तुहानूं लिखवाए गए तुहाडी बुक्स अवेलेबल है, कितने है तुसीं फॉर्मूलेस। ठीक है, इत्थे फॉर्मूला की लगा दिता, sin अल्फा करना यानी कि एंगल हाफ करना, तो 2 tan α/2 1 - tan स्क्वायर α/2 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, यह चीज़ आ गई। तो यही वाली चीज़ बच्चे, यही वाले दो फॉर्मूलेस यानी कि इतने थीटा है इतने अल्फा है, मैं डायरैक्टली फॉर्मूलेस लिखे हैं, यही वाले फॉर्मूले स्टूडेंट्स मैं इतने अप्लाई कर लगी हाँ। ठीक है, यह cos थीटा की वैल्यू यह आ गई, sin थीटा की वैल्यू एवली इन्होंने क्वेश्चनस दे विच आपां अप्लाई करनी है। ठीक है जी, सो ध्यान नाल देखो किस तरीके नाल अप्लाई होएगी। एंड जिहड़ा tan α/2 है स्टूडेंट्स, इनू मैं की पुट कर लिया वा t। ठीक है, उन्होंने टी इसलिए पुट किया कि थोड़ा जहा सिंपलीफाई हो जाए, लास्ट टी की वैल्यू आप tan α/2 कर देवांगे। ठीक है, थोड़ा जहा सिंपलीफाई हो जाए, सानू बार बार tan α/2 ना लिखना पवे, दैट्स वाई मैं इनू सिंपलीफाई करने के लिए ये लिखा। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो स्टूडेंट्स, मैं किद्दां इनू पुट कर रही हाँ। इनू 1 tan α/2 मैं की लिखना वा t, सो ये जगह पर की लिख दो t लिख दो, इतने -tan α/2 इतने -t लिख दो, इतने 1 लिख दो। ओके, cos अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स देखो cos थीटा का फॉर्मूला मैं लिखा हुआ, cos अल्फा एंड थीटा दैट इज़ द सेम। ठीक है ना, एंगल का ही फर्क है, तुम एंगल लै सकते हो। आह देखो 1 - tan स्क्वायर α/2 की वैल्यू तो बच्चे tan t हैगी है, इतने मैं लिख सकती 1 - t स्क्वायर, थले मैं लिख सकती 1 + t स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, यही वैल्यू बच्चे मैं इतने पुट कर लगी हाँ, ध्यान 1 - t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर। ठीक है जी, इतने माइनस बाहर आ, sin अल्फा की वैल्यू बच्चे इतों। ठीक है, sin अल्फा कि इक्वल है 2 tan α/2, 2 tan α/2 की तो वैल्यू t है। ओके, 1 - tan स्क्वायर अल्फा 1 - tan स्क्वायर α/2 ਇਹਦਾ स्क्वायर यानी कि 1 - t का स्क्वायर। सो असी यही वालियां जो दो वैल्यूज़ है ना वो ये पुट करनी है। ठीक है, -2t/1 - t का स्क्वायर।
ठीक है जी। अगे भी साइन अल्फा इन द सेंस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्केयर, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई आ वाली 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी द स्केयर। ओके नैक्सट देखो बच्चे ध्यान नाल, हुण इन्हां नूं आपां की करांगे, इन्हां दोनों मैट्रिक्स की की होनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जिद्दां तुसीं सिंपल करते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट बिल्कुल ही उस तरीके दे नाल ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होनी है, यानी कि फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम बिल्कुल उस तरीके दे नाल 1 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर विद नाल की हुंदा वा नैक्सट जो मल्टीप्लाई करते हैं ऐड करते हैं टी नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो स्टूडेंट्स की बन जाएगा 2t दा स्केयर 1 माइनस टी स्केयर। फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम 1 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया 2t ही रहेगा 1 माइनस टी स्केयर, टी नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया तो की इत्थे बन जाएगा स्टूडेंट्स t 1 माइनस टी दा स्केयर 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है बहुत ध्यान नाल करना है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान नाल। ठीक है नैक्सट देखो माइनस टी नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया, माइनस टी नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई किया कि आ जाएगा माइनस टी 1 माइनस टी स्केयर, ठीक है 1 प्लस टी स्केयर उस बाद प्लस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्केयर। ओके उस बाद यही वाले रो नूं इस कॉलम के नाल मल्टीप्लाई किया, ध्यान नाल देख लो स्टूडेंट्स की आ जाएगा इत्थे 2t दा स्केयर, देखो माइनस टी नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, कितना रह जाएगा 2t स्केयर अपॉन 1 माइनस टी स्केयर। ठीक है जी आफ्टर दैट माइनस टी नूं सॉरी 1 नूं बचे इहदे नाल प्लस 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर। वेट 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 एक बच्चे मैं छोटी जी एक मिसटेक की है, ठीक है तुसीं करैक्ट कर लो। इत्थे बच्चे 2 tan अल्फा इत्थे 1 प्लस हुंदा है, सो ये प्लस लगाना प्लस दे नाल आपां करना है सॉल्व। ठीक है यह जिहड़ा हुंदा है साइन tan 2 अल्फा दा हुंदा वा, साइन 2 अल्फा दे विच प्लस यूज़ करीदा आपां। ठीक है सो इत्थे प्लस लगना प्लस प्लस जिथे भी आपां लगाया प्लस प्लस प्लस। ठीक है जी ये तुसीं करैक्ट कर लेना, प्लस लगाना प्लस वाला हुंदा फॉर्मूला। ओके बस सिंपल ही हुण असीं इहनूं सॉल्व करांगे, ध्यान नाल देख लो सॉल्व किद्दां करांगे आपां नैक्सट इनू, इस तो बाद अगे नैक्सट स्टैप च की सॉल्व करांगे आपां इनू। इस तो बाद स्टूडेंट्स मैं नैक्सट स्टैप कर रही हूँ, ए दोनों तो बच्चे सेम है, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर, ऊपर बच्चे इनू सॉल्व करो 1 माइनस टी स्केयर प्लस 2t दा स्केयर कितना बन जाएगा 1 प्लस टी स्केयर नहीं बन जाएगा। ठीक है नैक्सट देख लो बच्चे इनू 1 प्लस टी स्केयर, ऊपर देखो बच्चे इनू मल्टीप्लाई करो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी दा क्यूब। ओके ये आ गया, नीचे बच्चे इत्थे भी इदां ही 1 प्लस टी स्केयर, ऊपर देख लो माइनस टी प्लस टी दा क्यूब प्लस 2t। ठीक है जी इत्थे देखिए स्टूडेंट्स इत्थे भी आपां 2t दा स्केयर माइनस टी स्केयर साडे कोल कितना बन जाना टी स्केयर सिंपल, सो 1 प्लस टी स्केयर इत्थे आ जाएगा टी स्केयर माइनस सॉरी इहदे आ गया टी स्केयर प्लस 1 सॉरी। ठीक है इनू सॉल्व करके मेरे को आ गया। ठीक है इनू मैं इत्थे दोबारा नैक्सट इनू होर सिंपलीफाई करन लगी हाँ 1 प्लस टी स्केयर ओ सॉरी 1 प्लस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर इत्थे तो बच्चे 1 ही आ जाएगा, कैंसल आउट ही हो गया। ठीक है आफ्टर दैट रहंदी आफ्टर दैट देखो ध्यान नाल इहदे विच माइनस 2t प्लस टी यानी कि मैं की लिख सकती हाँ टी क्यूब माइनस टी क्यूब इत्थे भी माइनस टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स देख लो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी रह जाना तो माइनस टी का क्यूब एक इत्थे इत्थे 1 आ गया, इत्थे भी आप स्टूडेंट्स देख लीए की आएगा इत्थे भी टी का क्यूब प्लस 2t माइनस टी कितना आ गया इत्थे प्लस का टी आ जाना। ठीक है 1 प्लस टी स्केयर देखो आ तो बच्चे सेम ही आ तो कैंसल ही हो जाना लाइक 1 आ गया साढ़े को इत्थे। ठीक है जी सॉरी इत्थे नीचे वाला का फैक्टर नहीं लगाया मैं 1 प्लस टी दा स्केयर। ठीक है सो नैक्सट देखो इत्थे इस स्टैप के विच 1 इन्हों दोनों च बच्चे टी कॉमन लो माइनस टी कॉमन आप लिया इत्थे। ठीक है सो इत्थे मेरे को आ जाएगा 1 टी स्केयर प्लस 1 आ जाएगा मेरे को, नीचे भी की है 1 प्लस टी स्केयर, इत्थे भी बच्चे मैं टी कॉमन लै रही हाँ टी स्केयर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्केयर इत्थे भी 1 आ जाएगा मेरे को। बच्चे आ फैक्टर आ फैक्टर सेम है, इन्हों कैंसल आउट कर दिए। ठीक है जी
सो नैक्सट इज़ द 1 माइनस टी बच गया, इत्थे कल्ला टी बच गया, इत्थे 1 बच गया। तो हाँ जी बच्चे इत्थे आपां जिहड़ा टी सीगी उहदी वैल्यू कितनी लई सीगी tan अल्फा बाय 2। सो पुट कर दो ही वाली tan अल्फा बाय 2 वाली वैल्यू नूं सेम पुट करता 1 माइनस, हाँ जी इत्थे कितना आ गया 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2, ठीक है जी इत्थे 1, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू दी लैफ्ट हैंड साइड। देखो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लैफ्ट हैंड साइड तो किवें इक्वल ही है। देखो आही वाली चीज़ आप लिखी सी ना लैफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ये इक्वल मतलब इनू मैं सॉल्व किया पूरी राइट हैंड साइड में सॉल्व करना पाया मैनू, ठीक है। सारा कुछ मैं सॉल्व किया स्टूडेंट्स इतने, ठीक है। ए वाले कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज पुट की। देखो इतने आप बच्चे टी के किदा यूज़ किया वा, क्योंकि मैं बार बार tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 नहीं लिखना चाहती, ठीक है। अदरवाइज आ सारा क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमैट्री वाले सारे फंक्शन के उपर बेस सीगा। कुछ बुक्स और कुछ सोल्यूशन के जो आंसर है साइन और कॉस की फॉर्म के भी गिवन है, ठीक है। तुम उदा करना चाहते हो उस तरीके कर लो, बट मैंने यह थोड़ा सा सिंपल लगा कि यदि कैलकुलेशन ठीक हो जाती है एंड ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होती, ठीक है जी। सो सारी कैलकुलेशन मैं इन्हों के अकॉर्डिंगली की है। टी लिया वा tan अल्फा बाय 2 टी पुट किया बेसिकली, ठीक है। लास्ट में आप टी tan अल्फा बाय 2 रिप्लेस कर देना, ओके। एंड इस तरीके राइट हैंड साइड में मैं सारा सॉल्व किया एवले वैल्यूज़ की हेल्प के नाल, ठीक है। इस तरीके के नाल भी कैलकुलेशन तुम देख सकते हो। एंड लास्ट में मेरे को आ गया लैफ्ट हैंड साइड के आ गया, यानी कि मैं की लिख सकती हाँ राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लैफ्ट हैंड साइड रूट, ओके। So this is the question number 18. Yes, so next is the sum number 19. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two type of the bonds. बच्चे देखो ये क्वेश्चन जोड़ा है ना, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प के नाल ही सॉल्व होएगा। द थिंग इज दैट कि सिर्फ जिवें कह सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के केस विच गिवन है कि मैट्रिक्स डायरैक्ट गिवन है कि तुसीं दो गिवन है तो हाँ जी इन्हूं मल्टीप्लाई कर दो, उदा नहीं है। द मतलब इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तुसीं इन्हूं इंटरप्रेट करके मैट्रिक्स जिहड़ी है खुद बनानी है, उहदे तो क्रिएट करनी है मैट्रिक्स, ठीक है। उन्होंने क्रिएट करने का की तरीका है, किद्दां बनाई जाएगी उन्होंने एक बार ध्यान नाल देख लो। A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of the bonds, ठीक है। एक ट्रस्ट के कोल 30,000 रुपया है वै फंड है, उन्हें दो टाइप की बॉन्ड के इन्वेस्ट करना है, ठीक है। दो टाइप्स के बॉन्ड के उन्हें इन्वेस्ट करना है 30,000 रुपीज़, ठीक है। उस तो बाद पहला बॉन्ड जोड़ा है उन्होंने 5% इंटरस्ट दे रहा, दूसरा बॉन्ड जोड़ा है 7% इंटरस्ट दे रहा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन के नाल शो करके दिखाओ कि 30,000 रुपये किद्दां दो बॉन्ड्स के डिवाइड किए जाएंगे कि वह एनुअल इंटरस्ट जोड़ा है 1800 रुपये बन जाए। इन्हूं ध्यान नाल समझो स्टेटमेंट में की लिखी हुई है, किस तरह आप करांगे इन्हूं प्रोसीड, ठीक है। ध्यान देना स्टेटमेंट में समझना सब तो पहले तो मैट्रिक्स बनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो सब तो पहले देखो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू टाइप ऑफ द बॉन्ड। एक ट्रस्ट के कोल कहते कि मैं साइड पर कर लगी सब तो पहले रफली इनू समझिए कि आप सॉल्व की करना चाहते। 30,000 रुपये है, ठीक है। 30,000 रुपीज़ है एंड वो किसी दो टाइप के बॉन्ड के यानी कि एक ए टाइप का बॉन्ड है, एक बी टाइप के बॉन्ड के इन्वेस्ट करना चाहते 30,000 रुपये, ठीक है। तो दो अद्धी दी देखो उन्होंने ये नहीं कहा भी कितनी अमाउंट एक च लानी है, एक बी के कितनी अमाउंट लगानी है। आप की कहते हैं कि लैट इट बी कि ए बॉन्ड के उन्हें एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दी तो बी के उन्हें कितनी की होगी 30,000 माइनस एक्स, ठीक है ना। दोनों में मिला के 30,000 करनी, पर मैंने ये नहीं पता भी ए च कितनी की तो बी च कितनी की। सो लैट इट भी एक एक्स ले लो तो एक 30,000 माइनस एक्स ले लो। इदा के क्वेश्चन तुम 10th भी करके आए हुए हो, ठीक है। इस तरीके के नाल आफ्टर दैट वो कहते कि पहले वाले बॉन्ड तो उन्होंने जो किन्ने % इंटरस्ट का प्रॉफिट हो रहा है, किन्ने % इंटरस्ट मिले 5%, मतलब ये जिन्ना भी पैसा लगाएंगे उन्होंने 5% रिटर्न उन्होंने मिल रही है, 5% इंटरस्ट उन्होंने मिल रहा पर ईयर। ये कितना मिल रहा भी 7% इंटरस्ट मिल रहा, ठीक है जी। तो इस तरीके के नाल अगर मिल रहा वा वो कहते कि ए मतलब एक्स नूं आपां किन्ना लईए कि जिहड़ा टोटल साडा जिहड़ा हैगा वा एनुअल टोटल इंटरस्ट जिहड़ा मेरे को बन के आवे किन्ने रुपये बन के आवे रुपीज़ 1800 रुपये बन के आवे। पहले पार्ट में आप पूछते हैं, दूसरे पार्ट में वो कहते हैं कि टोटल इंटरस्ट मेरे को जिहड़ा मतलब टोटल प्रॉफिट या इंटरस्ट कह सकते हो वो कितना आवे मेरे को 2,000 रुपये बन के आवे, ठीक है जी। सो देखो ये बच्चे दो चीज़ा की गिवन है, अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प के नाल सॉल्व करना है। सब तो पहले ना इनू इस क्वेश्चन में इदा समझो कि सिंपल आप मान लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ना लगानी होवे तो फिर इस क्वेश्चन में तुसीं किद्दां सॉल्व करोगे। सिंपल देखो सिंपल कि एक्स अमाउंट कोई आप इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। एक्स टाइप की कोई आप अमाउंट जी है वो इन्वेस्ट करनी है,
ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੇ 5% ਆਪਾਂ इंटरस्ट अप्लाई करना, तो मेरे को कितना इंटरस्ट आना चाहिए, 1800 रुपये मेरे को बनने चाहिए, यानी कि एक्स 5% ऑफ एक्स, यानी कि जिन्नी भी अमाउंट ही वह 5% प्लस जिन्नी भी अमाउंट इतनी हैगी, मतलब कि 7% ऑफ, देखो पहली बारी मेरे को 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 1800, ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम मेरे को की आना चाहिए वै यही 5% ऑफ एक्स 7% ऑफ एनी अमाउंट का मेरे को टोटल इंटरस्ट जो मेरे को गिवन आना चाहिए वै, द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ 2000, ठीक है, मस्ट ऑब्टेन। इतने क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़िए। Using matrix multiplication determine how much we divide 30,000 among the two type of the bond, कि 30,000 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, मतलब कि A ਤੇ B ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ if the trust must obtain an annual total interest of 1800 रुपये ਦਾ total interest ਉਹਨੂੰ बैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है जी, इदा। सो देखो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ना करनी हो तो बिल्कुल आही इक्वेशन बनेगी, इनू सॉल्व करो तो इतों डायरैक्टली एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी नहीं करना, जिਵੇਂ 5% है तो कितना हो जाएगा 5 × 100 हो जाएगा, ठीक है जी। 7% है तो 7 × 100, इनू करो तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू नॉर्मल सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगी। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम बच्चे कितना लगाओगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स देखो सब तो पहली गल तो सानू यही वाली इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म च चेंज करना, तो उन्होंने आंसर के आपां क्रिएट इस तरीके के नाल करना है कि वो इक्वेशन आही वाली बन जाए, सेम बन जाए। यानी कि मैंने आंसर के स्टूडेंट्स की चाहिए, सब तो पहले मैं इक्वेशन बना लगी, आंसर के स्टूडेंट्स देखो मैं सब तो पहले की चाहिए वै 1800, कि एनुअल इंटरस्ट मेरे को 1800 रुपये बनता हो, यानी कि यह 1 बाय 1 मैट्रिक्स है। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स मेरे को आंसर के जी 1 बाय 1 की एक मैट्रिक्स के मतलब मैंने आंसर चाहिए वा, ठीक है। तुहानू पता है कि स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस उदों पॉसिबल नहीं है, इतने मतलब मैं कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करांगी तो आंसर के मैंने आ चाहिए। तुहानू पता कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उदों पॉसिबल है वैन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किदे इक्वल आनी चाहिए है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सैकेंड मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैगी, ठीक है। देखो इतने 1 बाय 1 चाहिए, यानी कि मैनू इतने जी मैट्रिक्स चाहिए वो वाला पार्ट 1 होना चाहिए वै, ठीक है। यह वाली चीज़ ये वाली चीज़ के नाल मैच करनी चाहिए। देखो इतने दो चीज़ां गिवन है, देखो आ जी चीज़ गिवन है, एक तुहानू गिवन है पर डाटा देखते हैं ना किदा का गिवन है, आ चीज़ की गिवन है तुहानू अमाउंट गिवन है, आ चीज़ की गिवन है तुहानू इंटरस्ट रेट गिवन है, ठीक है जी। इस अलावा कोई होर तीसरी चीज़ तुहानू आ गिवन है, तुसीं इक्वल टू रखनी कि मैनू इन्ना चाहिए वै, इक्वल टू आंसर मेरा 1800 रुपये इंटरस्ट मैनू चाहिए वै, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि कितनी अमाउंट तुसीं इन्वेस्ट करोगे तो आंसर के तुहाडे कोल की आना चाहिए वै 1800 आना चाहिए, ओके। सो देखो तुसीं इत्थे किहड़ी ऑर्डर की मैट्रिक्स लाओगे कि आंसर के तुहाडे कोल 1 बाय 1 मैट्रिक्स का आंसर आए, रिजल्ट आंसर के आए, ठीक है। इत्थे देखो स्टूडेंट्स अगर मैं इत्थे मैट्रिक्स लै ला स्टूडेंट्स 2 × 1 की, ठीक है, इत्थे मैं लै लवां नहीं सॉरी 1 × 2 एंड इत्थे अगर मैं लै लवां 2 × 1, ध्यान नाल देखो इनू मैं इदां क्यों लिया, ये नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे ये नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएंगे, यह दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो रिजल्ट के मेरे को किहड़ी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 × 1 आ रही है, 1 × 1, ठीक है ना, आ रही है ना 1 × 1। 2 नू यह तो आ गया 2 नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रोज के नाल सेम हो गए, 1 × 1 की मैट्रिक्स रिजल्ट के साढ़े कोल आ गई, ठीक है। हुण 1 × 2 की मैट्रिक्स का मतलब है कि एक रो ते 2 कॉलम्स। देखो इदा ही अगर मैं लिखा 1 रो 2 कॉलम्स, यानी कि अगर मैं इस तरीके से मैं लिखता एक्स है 30,000 माइनस एक्स 1 × 2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नैक्सट बेटा जी हो गया इतने इंटरस्ट वाली मैट्रिक्स आ 2 × 1, 2 × 1 का मतलब है कि 2 रोज 1 कॉलम, ठीक है। तो 2 रोज 1 कॉलम यानी कि 5% 7% है, इदा लिख सकती है कि 5% एंड 7%, ठीक है। इक्वल टू मेरे को बनना चाहिए वै 1800, ठीक है, दैट इज 1 × 1, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल इतने देख लो 1 × 2 है 2 × 1 है। हुण आ तो सिंपल दो मैट्रिसेस बन गए, इन्होंने मल्टीप्लाई करना, आंसर मैंने आया चाहिए, आंसर मेरे को डायरैक्ट तुसीं वैल्यू कि कट के दिखानी है बच्चे, एक्स की वैल्यू कट के दिखानी है। सिंपल बच्चे देख लो इतने 5% है, ठीक है, 5% तुसीं यह भी लिख सकते हो 0.05 लिख सकते हैं। 5% का मतलब होंगे कि 5/100, सो दैट इज इक्वल टू 0.05।
7% का मतलब होंगे 0.07, सो विच इज़ इक्वल टू 1800। बच्चे इनू आप सिंपल सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प देना 0.05 इंटू एक्स, ठीक है जी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट थोड़े को बन गई इनू ये मल्टीप्लाई करना 0.07 इंटू 30,000 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 1800, सॉरी 1800, ठीक है। तो तुम हम देख सकते हो ए वाली चीज़ तो आ जी विदाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैं बनाई सी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो सेम है तो तुम डायरैक्टली इन्हों सॉल्व करो, सिंपल इतों तुम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, इन्ना काम तुम स्टूडेंट्स खुद करोगे। सिंपल मेनली द थिंग इज़ दैट कि तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के जो भी स्टेटमेंट वाला चीज़ आ जाती है तुम इन्हों के ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स इतने ये भी कर सकते हो कि जिमें आंसर के मैंने 1 क्रॉस 1 चाहिए सी मैट्रिक्स, नहीं बट इतने नहीं कर सकते। इट इज़ एक्स 30,000 माइनस एक्स, इतने आ वाली ऑर्डर की सानू आंसर के 1 बाय 1 मैट्रिक्स चाहिए सी, 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए सी, ठीक है जी। इतने साडा कितना आना चाहिए 2 बाय 2 मैं अंदर लै लिया मैट्रिक्स नू, 1 बाय 1 तो 1 जो आउटर से लै लिया ताकि ये बन जाए मेरे को, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, ये इक्वल आनी चाहिए है। सिंपल मल्टीप्लाई करांगे तो देखते आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द सम नंबर 19। So next is the sum number 20. The bookshop of a particular school has a 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics and 10 dozen economics books. Selling price भी बच्चे given है तो इन्हों total amount of the bookshop will receive from selling the all books using matrix algebra। देखो अगर मान लो यही वाला क्वेश्चन अगर तुहानू मैट्रिक्स तो बिना अगर तुहानू आए तो सिंपल कितना करोगे। सिंपल देखो कितनी सौखी जी चीज़ गिवन है कि 10 डजन जी केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन 10 डजन 10 डजन का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 8 डजन दियाँ है, ठीक है, तो 10 डजन इकनॉमिक्स दी बुक्स ही हैं लाइक दिस, ठीक है। एंड उन्होंने जी सैलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, वो तो इन्ने गिवन है। सब तो पहली गल तो 10 डजन का मतलब कि यही हो गया 120, ठीक है, 120 है केमिस्ट्री दियाँ, तो दिस इज़ 96 है वे तुहाडे कोल फिजिक्स दियाँ एंड 120 है तुहाडे कोल इकनॉमिक्स दियाँ, ठीक है जी। इन प्लस नहीं होना पहले तो ये वाली गिव पहले तो बुक्स है इन्हों की बच्चे कॉस्ट प्राइस ऑफ दी पर बुक ईच बुक लिखा हुआ, ठीक है। यदि सेलिंग प्राइस बच्चे कितनी गिवन है 80 रुपीज़, यदि 60 रुपीज़ गिवन है, 40 रुपीज़ गिवन है। कहते कि टोटल अमाउंट जिन्नी बुक शॉप के कोल गई उन्नी दसो कितनी होगी। सिंपल जी गल है कि अगर एक बुक 80 रुपीज़ की है 120 बुक्स कितनी रुपीज़ दी हो जाएगी भी, सिंपल इदा, ठीक है। 96 बुक्स अगर एक बुक 60 रुपीज़ की 96 बुक्स मल्टीप्लाई, ठीक है, यह भी इदा ही। तो टोटल अमाउंट तो सारी इनू ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करो, टोटल अमाउंट जिन्नी जी सेल्समैन मिली वो इतने आ जाएगी, कोई अमाउंट आएगी। इट मीनस कोई सिंगल अमाउंट आएगी 1 क्रॉस 1 वाली। हुण यही वाली चीज़ बच्चे यही वाली जी एक मैट्रिक्स बन रही है, इनू ही आपां की करना वा इन दी फॉर्म ऑफ असी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प दे नाल इनू सॉल्व करना, सिंपल, ठीक है। सो देखो ध्यान नाल असी की कर रहे हैं, कितना इनू सॉल्व कर रहे हैं। इत्थे देखो आपां दिस इज द सम नंबर 20, ठीक है। देखो ना असी कितना सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान नाल देखिए। लास्ट ते आंसर दे जो भी मैंने चाहिए दैट शुड बी अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। एक ही मेरे को लगी अमाउंट जी अमाउंट सेल्समैन जोड़ा सीगा सारिया इन्नियां डजन बुक्स इन्ने अमाउंट के वेच के एक सिंगल प्राइस को मिलता पे दैट इज़ द अमाउंट, ठीक है। 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स चाहिए। हुण इत्थे कितनी चीज़ां आईयां वा 3 चीज़ां आईयां, मतलब 3 क्रॉस 1 बन सकती है, 1 क्रॉस 3 बन सकती है, इदा मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। इत्थों आइडिया लगाना 3 चीज़ां गिवन है, 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अच्छा हुण देखो अगर इनू मैं इस तरीके के ला ला तो देखना कि लास्ट से आंसर मेरे को 1 क्रॉस 1 आना चाहिए। की पॉसिबिलिटी है कि 1 क्रॉस 1 आएगा, या तो पॉसिबिलिटी है कि मैं 1 क्रॉस 3 वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करदा 3 क्रॉस 1 के नाल मल्टीप्लाई करदा तो आंसर के मेरे को 1 क्रॉस 1 आ जाएगी। यह भी चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों चीज़ा मैटर करनी है। या की पॉसिबिलिटी हैगी मेरे को कि या मैं इत्थे इदा ला सकती हाँ कि स्टूडेंट्स 3 क्रॉस नहीं पॉसिबिलिटी स्टूडेंट सिर्फ यही रहेगी, है ना। अगर इतने मैं देखो इन्हू 3 क्रॉस 1 लै लवां या इनू भी 1 क्रॉस 3 कर ला, फिर आंसर में मेरे को 3 क्रॉस 3 वाली मैट्रिक्स आती आ तो सेम हो जाता, बट 3 क्रॉस 3 आती लास्ट से मैंने 3 क्रॉस 3 नहीं चाहिए। सो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है, ठीक है। इनू तुम इस तरीके के नाल ही लिखना। पहली मैट्रिक्स की लिखोगे 1 क्रॉस 3, अगली मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 की फॉर्म के, ठीक है।
देखो पहली मैट्रिक्स अपनी मर्जी होंगी की तुहानूं चीज़ां गिवन है, कंटेंट की गिवन है। एक तुहानूं गिवन है कि बुक शॉप्स दे जिहड़ियां बुक्स हैगियां वा उन्हां दी नंबर ऑफ सेल गिवन है कि 120 बुक्स हैगियां, यूनिट्स गिवन है कि बुक्स कितनियां केमिस्ट्री दी कितनियां हैगियां एवें गिवन है। यूनिट्स पहले लिख लो कि किहड़ियां बुक्स कितनियां गिवन हैगियां। लाइक अगर मैं लिखा कि 120 बुक्स, डायरैक्टली मैं दसनजनी दे अकॉर्डिंगली नहीं लिख ली, मैं डायरैक्टली इनू 120 करके लिख रही हूँ। 96 ठीक है, इत्थे आ गया मेरे को 120 ठीक है। दिस इज द यूनिट्स ऑफ बुक्स कि कितनियां नंबर ऑफ बुक्स, ये यूनिट्स लगा लो, इनो यूनिट्स और नंबर ऑफ बुक्स ठीक है। एक मैट्रिक्स है बन गई। दूसरी मैट्रिक्स आप बनानी है, यह देखो स्टूडेंट्स ध्यान नाल देख लो कि मैट्रिक्स बनाई है, एक रो आ 3 कॉलम है। दिस इज द 1x3। नैक्सट मेरे को कि बननी चाहिए 3x1 ठीक है। 3x1 कुछ हर टाइप की बनेगी, यानी कि 3 कॉलम्स से 3 रोज एंड इको कॉलम ठीक है जी। तो नैक्सट मैट्रिक्स मेरे को बनी चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स। दूसरी गल उन्होंने कही है कि हर बुक का कॉस्ट प्राइस गिवन है ठीक है, वो प्राइस गिवन है, यानी कि लिखोगे 80 60 एंड 40 एंड दिस मैट्रिक्स इज 3x1 यानी कि 3 रोज एंड 1 कॉलम है ठीक है। तो रिजल्ट के मेरे को इतने जी मैट्रिक्स आएगी बन के इक्वल टू कि आएगी 1x1 वाली आएगी ठीक है। तो मैट्रिक्स बन गई, इन्हें तुम मल्टीप्लाई करो एंड देखो इन्हों मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 120 मल्टीप्लाई 80 आएगा प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 40 है ना। इनू सॉल्व करके इतने एक आंसर आएगा। तो यही वाली इक्वेशन सेम बन गई साढ़े कोल, और ये जी इक्वेशन है मैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व की, ये आप डायरैक्टली सॉल्व की है ठीक है। हुण नैक्सट देखो, नैक्सट अच्छा तुसीं हुण सोचते होगे कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स वाली मैट्रिक्स ही इदां लैनी है, इनू इत्थे नहीं लै सकते है ना। कोई अपनी मर्जी के नाल सोच भी तो सकता ना, इदां भी तो हो सकता ना कि आपां जिहड़ी है अमाउंट वाली यह हैगी नंबर ऑफ यूनिट्स, यह गिवन सी अमाउंट कि एक बुक का इन्ना अमाउंट है। अमाउंट वाली मैट्रिसेस भी तो इदां लै सकते हैं ना, यह भी लै सकते बिल्कुल ठीक है। कोई इदां भी लिख सकता 80 60 40 ठीक है एंड 120 96 एंड 120 ठीक है जी। सो दिस इज मैट्रिक्स इज 1x3 एंड दिस इज 3x1 है ना। द ऑर्डर शुड बी द सेम, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना, द ऑर्डर शुड बी द सेम। तुसी चाहे इनू 1x3 कर लो मतलब अमाउंट वाली मैट्रिक्स नूं इत्थे लै लो, तो चाहे नंबर ऑफ बुक्स वाली इत्थे लै लो, ਉਹਦਾ कोई इफेक्ट नहीं पएगा ठीक है जी। और इत्थे जो एक सिंगल आंसर आएगा। दस इदा ही करोगे, इन्हू बच्चे सॉल्व कर लो दैन यू विल गेट द आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इदा के क्वेश्चन पेपर के आ जाते होंगे हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडीज़ क्वेश्चन। तुहानूं पता ना केस CBSE ने केस स्टडीज़ इंक्लूड की। अगर मान लो मैट्रिसेस के केस स्टडी बनती है तो इदा का ही एप्लीकेशन पार्ट के बेसिस के उपर मतलब जो केस स्टडी है वो बन सकती है इदा के क्वेश्चन। मतलब तुहानूं स्टेटमेंट में इंटरप्रेट जो करना आना चाहिए ठीक है। सो ध्यान नाल इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए। सो नैक्सट क्वेश्चन इज दिस द रिस्ट्रिक्शन ऑन N K and P so that this will defined as this। बच्चे ये क्वेश्चन देखो असीं किस तरीके दे नाल करांगे। रिस्ट्रिक्शन कहते कि की होनी चाहिए, तुसीं इहनूं चैक कर लो ध्यान नाल। देखो इत्थे मैं दस रही हाँ तुहानूं कि PY प्लस WY ठीक है जी। P बच्चे किहड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स है, P बच्चे इत्थे गिवन है P×K ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि P×K। Y किहड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दूसरी वाली मैट्रिक्स यानी कि दिस, यानी कि यह आनी चाहिए 3×K ठीक है हाँ जी। प्लस W तो K, W तो Y है ना। सो W इज दिस N×3 एंड Y इज दिस लास्ट वन 3×K ठीक है जी। देखो कहते कि इनू पॉसिबल मतलब कि यह चीज़ न्यू ट्रू होने के लिए की रिस्ट्रिक्शनस होनी चाहिए, की कंडीशनस होनी चाहिए। देखो सब तो पहले अगर तुम इन्होंने दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करना तो की सेम होना चाहिए, इट शुड बी सेम एज दिस। इट मीनस कि K के इक्वल होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। सब तो पहले कंडीशन तो आ गई, उन्होंने यही कहना कि की रिस्ट्रिक्शनस होनी चाहिए या की दसो वैल्यूज होनी चाहिए। सो K इज इक्वल टू एक तो 3 चाहिए सानू। दूसरी गल की है, मान लो अगर आप K की वैल्यू को 3 पुट कर दें, लेट इट बी अगर K 3 हो जाता है ना, P×3 एंड 3×K हो जाता ठीक है। फिर इत्थे कि इनू मल्टीप्लाई करके की है, यदा तो चलो ठीक है 3 सेम है, इनू मल्टीप्लाई करके किहड़ी ऑर्डर की आती पी N तो K ठीक है। इत्थे भी स्टूडेंट्स की आना चाहिए वै, यह तो सेम हो गया, इत्थे आ रहा मेरे को PK प्लस NK ठीक है। तुहानूं पता कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन जी एडिशन है वो उदों ही पॉसिबल है कि जो दोनों का ऑर्डर सेम होएगा, एग्जैक्टली सेम ठीक है। अगर इत्थे कोई मैट्रिसेस N×K दी गिवन आ गई है साढ़े कोल ठीक है,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ n क्रॉस k ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ p क्रॉस k ਐਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ n क्रॉस k, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, k ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ p ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, n क्रॉस k ਪਲੱਸ n क्रॉस k ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਲੇ ਕਿ k 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ n ਵੀ ਜਿਹੜਾ p ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, a ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਈਆਂ, k = 3 ਆਵੇ ਤੇ n = p ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਫ n = p ਦੈਨ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7x ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 2 क्रॉस n, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 5z ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ 2 क्रॉस p। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ p ਜਿਹੜਾ n ਜਿਹੜਾ p ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ 7 2 क्रॉस n माइनस मल्टीप्लाई p ਜਿਹੜਾ n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਯੂ ਨੋ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 क्रॉस n ਦੀ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ b ਪਾਰਟ 2 क्रॉस n, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ योर ਆਨਸਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 3.2 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 13 ਐਂਡ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 एवरीवन।